Welcome back friends. In today's class we will be continuing practice set 3.1. Okay, so we had done till question number 4 in the last class. We will start with question number 5, which says that classify the polynomials as linear, quadratic and cubic. Now जैसे हमने last class में देखा, we saw that in that family the first 3 students उनका क्या था, कौतुक था, है ना, उनको सब लोग प्यार करते थे. Same way, whenever the degree of a polynomial is 1, a polynomial having degree 1 is known as a linear polynomial. A polynomial having degree 2 is known as a quadratic polynomial. A polynomial having degree 3 is known as a cubic polynomial. Okay, and what about a polynomial having degree 4? उसको कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो है it is a polynomial having degree 4. समझ में? सिर्फ स्पेशल कौन है? 1 2 3. देखो हमेशा स्पेशल 1 2 3 रहते हैं. ओलंपिक्स में जाओ, किधर भी जाओ, है ना, ओनली द फर्स्ट 3 आर स्पेशल, सो दे आर गिवन स्पेशल नेम्स एज linear, quadratic and cubic. Okay, so you understood now. If the degree of the polynomial is 1, it will be linear polynomial. If the degree is 2, it will be quadratic polynomial. If the degree is 3, it will be a cubic polynomial. Okay, so let's start with question number 5. Classify the polynomials as linear, quadratic and cubic. तो सबसे पहले है 2x square plus 3x plus 1. उसका डिग्री क्या है? 2. करेक्ट. हाईएस्ट डिग्री इज 2, therefore degree of the polynomial is 2, therefore it is a quadratic polynomial. सेकेंड वाला है 5p, उसका डिग्री कितना है? 1, therefore it is a linear polynomial. नेक्स्ट वन इज √2y minus half. देखो रे, √2y minus half, इसका डिग्री कितना है? 1, है ना, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है. इसका डिग्री 0, इसका 1, तो बेसिकली डिग्री ऑफ द whole polynomial is 1, therefore it is a linear polynomial. Let's move to the next one. m cube plus वो सब कुछ दिया हुआ है, तो the maximum degree is 3, therefore degree of that polynomial is 3, therefore it is a cubic polynomial. The next one is again it is a quadratic polynomial, and the sixth one again 3r cube, it is a cubic polynomial. Okay, तो ये हो गया polynomial. हम लोगों ने देखा क्यूबिक, quadratic and linear polynomials. Okay, now let's move to the one of the most important concepts which is being taught in this practice set, जो आगे यूज होने वाला है 3.3 3.4 में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. वो कि whenever a polynomial is given, any polynomial that is given to you, we will learn to write that polynomial in 3 different forms. 3 different forms means we will learn to write it in the standard form, index form and coefficient form. तो कैसे लिखते हैं? तो ये polynomial दिया है. ओके, p of x का मतलब क्या? a polynomial in variable x. तो ये p of x लिख दिया. तो this is any polynomial that is given to you. करेक्ट, एक polynomial दिया. now we have to write it in the standard form. तो standard form में लिखना है, मतलब exactly क्या करना है? we have to write it in the descending order of their degrees. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट डिग्रीज, मतलब देखो 5, फिर 4, फिर इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0, है ना. इसको हमने कैसे लिखा? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा. तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तुमको समझ में आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, कि राइटिंग इट इन द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ देयर डिग्रीज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन इंडेक्स फॉर्म. अभी इसमें तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिख दिया 5 4, बट 3 and 2 आर मिसिंग, वो हमने नहीं लिखे, डायरेक्ट 1 लिखा. ये तो जो मिसिंग है वो भी हम लोग इसमें पुट करेंगे. ओके, तो नाउ सी हियर डिग्री 3 डिग्री 2 इज मिसिंग, तो वो भी ऐड किया. देखो 7x raised to 5 प्लस 3x raised to 4 प्लस, देखो ये नहीं है ना, 0x क्यूब भी, 0x स्क्वायर भी, फिर 8x एज इट इज, फिर 9. ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द इंडेक्स फॉर्म. एंड देन वी कम टू द कोएफिशिएंट फॉर्म. ये सबसे आसान है. अगर तुम्हारे पास इंडेक्स फॉर्म डायरेक्टली है तो तुम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म बना सकते हो. देखो 7 3 0 0 8 9, सिंपल. अभी फ्रॉम दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सपोज देयर आर 6 डिजिट इन द कोएफिशिएंट फॉर्म, मतलब तुमको पता है हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5 है. करेक्ट, सिंपल ना. ये कांस्टेंट है, ये डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5. करेक्ट, तो what will be the maximum degree of the term in this
इट विल बी 5। तुमको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 6 नंबर है, करेक्ट। नाउ in the remaining questions you have to convert. Suppose they will give you in coefficient form, so you should be able to write it in any of the forms that are given. Okay, suppose standard form देंगे बोलेंगे coefficient में लिखो, coefficient form देंगे बोलेंगे index form में लिखो, तो कैसे भी देंगे वो तो तुम लोगों को लिखने को आना चाहिए। Okay, so let's move to question number 6. Write the following polynomials in standard form. So कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m, कितना इजी देखो, m क्यूब प्लस 5m प्लस 3, हो गया सिंपल। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो सब लोग, आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर। क्या देखो, y रेज टू 5 प्लस 2y रेज टू 4 प्लस 3y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस हाफ, है ना? ये लिख दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो 5 4 3 2 1 0, करेक्ट, as simple as that. Okay, now question number 7, they are telling you to write the polynomials in coefficient form. ठीक है, तो अभी पॉलिनोमियल्स दिए उसको हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो पहला पॉलिनोमियल दिया है तुमको x क्यूब माइनस 2। नाउ टू राइट दिस इन द कोएफिशिएंट फॉर्म, सबसे पहले अपने को इंडेक्स फॉर्म होना चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले दिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इंडेक्स फॉर्म और फिर ही तुम्हारे पास आएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से है, तो लिखेंगे p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी इंडेक्स फॉर्म में क्या होगा? इंडेक्स फॉर्म क्या होगा? x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, बराबर है कि नहीं? अभी कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? 1 0 0 माइनस 2। देखो मैंने तुमको कभी भी बता रहा हूँ, नंबर की शादी हमेशा साइन के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। कभी भी नंबर लिखोगे तो उसके साथ उसका साइन भी लिखना है। ओके, तो दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस x क्यूब माइनस 2, तो ये उसका कोएफिशिएंट फॉर्म है। सिंपल एज दैट, करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? सी व्हेनेवर अगेन आई एम टेलिंग यू एनी पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, ठीक है, उसको सबसे पहले फर्स्ट इट शुड कम इन द इंडेक्स फॉर्म, देन ओनली यू कैन राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म। टू गेट द इंडेक्स फॉर्म फर्स्ट इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सारे फॉर्म करने जरूरी है। तो ये ऑलरेडी इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी रोट इट इन द इंडेक्स फॉर्म एंड देन वी रोट द कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5y, ये क्या इतना सा है 5y, तो लेकिन इसका कांस्टेंट टर्म आगे का मिसिंग है, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म क्या है? 5y प्लस 0, फिनिश, द मैक्सिमम इज 1। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट फॉर्म में 5, 0। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 2m raised to 4 2m raised to 4 minus 3m square plus 7। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन टू यू। अभी इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा? 2m raised to 4 प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 7। अब इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में, क्या? 2 0 माइनस 3 0 7। कितना इजी है ना यार बच्चों, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, hope you are understanding how we write it in the index form and then ultimately in the coefficient form. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली होशियारी करने जाते हैं, डायरेक्टली इधर से इधर लिखने जाते हैं। क्यों करते हो ऐसा, है ना? जैसा एक इंडेक्स फॉर्म लिखो पहले, तो ये लिखो, एकदम करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
-2/3। अब ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, सिर्फ एंड का ही है, x⁻0 रहता ही है, करेक्ट। तो इट इज ओनली -2/3, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म भी वही होगा -2/3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी उल्टा तुमको दे रहे वो 1 2 3, बोल रहे कि ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है एंड यू हैव टू राइट इट इन द इंडेक्स फॉर्म। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कांस्टेंट, ये क्या होगा x का टर्म, ये क्या होगा x² का टर्म। देयरफॉर इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, हो गया। देखो कितना इजी। नेक्स्ट वाला 5,000 -1, 5,000 -1 है ना। अभी फिर से ये पिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा वेरी इजीली। दिस विल बी द कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। फिर ये x की टर्म, फिर ये x² की टर्म, फिर ये x³ की टर्म और ये x⁴ की टर्म। देखो 5,000 -1, 5,000। See, whenever you see that suppose there are 5 digits in the coefficient form, मतलब ये मैक्सिमम डिग्री कितना x⁴ होगा। ये x⁴ का है, ये x⁴ का है, x⁴ का, x⁴ का और x⁴ का, म्हणजेच कांस्टेंट का है ना। तो तुमको ये आना चाहिए। हमने यहाँ पे भी देखा था, जो हमने एग्जांपल लिया था, है ना। देखो सपोज तुमको ये दिया हुआ है, कितने इसमें 6 है, तो ये कितने x⁵ का है, 5 4 3 2 1 0, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज -2 2 -2 2। ठीक है, देखो अभी इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। सो ये क्या है कांस्टेंट, ये x का, ये x² का और ये x³ का। सिंपल लॉजिक। सो हाउ विल इट बी, -2x³ + 2x² -2x + 2, सिंपल। तो ये क्या है, इंडेक्स फॉर्म, करेक्ट। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। ओके, सो टुडे वी सॉ व्हाट आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। वो उसमें क्वेश्चन 9 है, उसमें तुमको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाइनोमियल वो करना है, वो तुमको खुद से करना है एज अ होमवर्क, एज एन एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट देम एंड राइट इट बिलो देम। ओके, और हमने क्या देखा, हमने what देखा कि whenever a certain polynomial is given, under the standard form, index form and coefficient form। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म देखा एंड वी डिड क्वेश्चन नंबर्स 6 7 and 8 बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड इंडेक्स एंड कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, सो see you in the next class. Till then, stay home, stay safe.